All right, dear students, let us proceed with other information. Okay. Um, General details for the students. Do remember that there is a lot of detail that you need to understand. बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वक्त के साथ जैसे जैसे कोर्स आगे प्रोसीड होता रहेगा, I'll keep on explaining those to you. ठीक है, ताकि you have a better understanding. लेकिन you have to make sure that you take notes. ठीक है, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू टेक नोट्स. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड if you find something valuable, some valuable information regarding any question, part A या part B या any part of a question, you have to take notes. ठीक है, that is the right way to go. ठीक है, and that is the right way to understand the subject. ठीक है, जहाँ पे जो चीज, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो टू गेट बेटर मार्क्स एंड टू मेक योर लर्निंग इजी, या कोई भी वजह हो सकती है, राइट? एंड दिस इज सम जनरल इंफॉर्मेशन. द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द एंटायर सिलेबस. ठीक है, as I told you in the last video, there are 8 chapters, 4 in paper 1, 4 in paper 2 for Islamic 2058. ठीक है, you cannot you're not supposed to skip. ठीक है, there is no shortcut to success. ठीक है, अपने आप को प्लान करें, और प्लान आपने डे 1 से करना होता है, अगस्त से, और डे 1 से करना होता है जनवरी से. ठीक है, ए स्टार के लिए आई एम सॉरी, लेकिन आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा. ओ लेवल रिक्वायर्स डिसिप्लिन. ठीक है, विदाउट डिसिप्लिन आप फिर यू आर गोइंग फॉर ब्लाइंड लक. ठीक है, एंड ये कोई तैयारी नहीं होती कि आखिरी वीक में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू हैव अ प्लान फॉर योरसेल्फ, right? Try to understand how you work things out and how you prepare for the exams, right? Metacognition. You need to understand your way of learning and you need to understand what works for you. चलेंगे तो बात आगे करेंगे. The candidates are required to study the entire syllabus. You have grade 9 and 10 to prepare for the entire syllabus of Islamic 2058, right? Acha, during studying the grade 10, your school gets you enrolled for CI exams for 3 subjects: Islamic, PST, and Urdu. These are the national subjects. ठीक है, तो ये नेशनल सब्जेक्ट्स हैं, ये ग्रेड 10 के एंड पे आपको अपीयर होना होता है. तो यू हैव ग्रेड 9 एंड 10 टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर सिलेबस ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स एट लीस्ट. ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट को आपको ग्रेड 10 के एंड पे अपीयर होना होता है. तो आपके पास ग्रेड 9 और 10 होता है, जिसमें आपको you have to make sure that you have understood the entire syllabus, read the entire syllabus, prepared for the entire syllabus, memorized the important details. You're ready for appearing for the paper. ठीक है, अच्छा, at the end of grade 10 you're required to appear for the CI exams, also called the external exams. Now, some basic skills जो आपको, I'll talk about Islamiyat, right? So for Islamiyat, you need to have some basic skills. और भी skills हो सकती हैं. ठीक है, there can be many skills, लेकिन फिलहाल जो जहन में आ रही हैं, I'll talk about these things. Note taking skills while you are going through the lecture, while you are preparing, while you are studying in the class, you're taking a normal class, a usual day. So you should sit like a journalist, you should take notes. ठीक है, while other students are talking, you should take notes. While the teacher is talking, you should take notes. While you are going through the book, you should take notes. ठीक है, आपको की टेक अवेज जो होता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होती है क्लास में, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो उसमें जब हैवी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है या टीचर को डिस्कस करता है, आस्क्स समवन समथिंग इम्पोर्टेंट, तो उस वक्त बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एक हाई लेवल ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग की वजह से कोई बहुत इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एकदम से सामने आती है फॉर अ शॉर्ट वाइल. ठीक है, फॉर अ शॉर्ट वाइल, देखो यहाँ पे ये नहीं करना, यूं नहीं करना, देखो ये नहीं करना. तो यू हैव टू हैव अ नोट टेकिंग स्किल. आपको फौरन से वहां पे एज अ जर्नलिस्ट आपको नोटिस करना है कि ये यहाँ पे कहा गया था, ये करना होता है, इस क्वेश्चन में ये नहीं करना होता. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक नोट्स.
टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, यू हैव टू हैव ग्रेट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. लेट अस सी ओवर हियर फॉर पार्ट ए, 10 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 10 मार्क क्वेश्चन. हाउ मेनी मिनट्स आर अवेलेबल? 18 मिनट्स मैक्स, ठीक है. 18 मिनट्स होते हैं 10 मार्क क्वेश्चन डेवलप करने के लिए, ठीक है. 2.5 to 3 पेजेस का आंसर होता है. मतलब 3 पेजेस, आई मीन 3 साइड्स ऑफ अ पेपर. वन साइड ऑफ अ पेपर हैज अराउंड 26 या 28 लाइन्स. 28 into 2 56, और 28 का हाफ 14, 56 + 14, 70 लाइन्स. तकरीबन 10 मार्क क्वेश्चन 70 लाइन्स का होता है. और एक लाइन में ऑन एन एवरेज यू हैव टू राइट एटलीस्ट 9 वर्ड्स, ठीक है. तो 70 into 9, 630 वर्ड्स. 630 वर्ड्स का एक आंसर हो सकता है, लॉन्ग ऐसे टाइप आंसर, जिसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. बॉडी में हर पैराग्राफ में अच्छी तरह बहुत खूबसूरती से अपने आंसर को प्रेजेंट किया गया है. इंट्रो से कंक्लूजन तक एक बहुत खूबसूरत सी एक स्टोरी चले, जो इतने अच्छे तरीके से समझ में आए कि एग्जामिनर जो है वो, योर आंसर शुड बी फ्लॉलेस, कि एक नॉन मुस्लिम को भी समझ में आए कि यहाँ क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है, क्या इवेंट था, क्या रीजंस थे जिस वजह से ये सब कुछ हुआ, क्या इसका रिजल्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इसका मुसलमानों पे इम्पैक्ट हुआ, क्या नॉन मुस्लिम्स पे इम्पैक्ट हुआ, राइट. अच्छा, 4 मार्क क्वेश्चन. 4 मार्क क्वेश्चन. हाउ मेनी मिनट्स आर अवेलेबल? 7 minutes. This is the this is the these are the minutes that are advised by the CI. ठीक है, CI जो एडवाइस करता है कि आपका स्टूडेंट जब वो 18 मिनट्स ले, जिसमें एक आध मिनट प्लानिंग कर ले कि मैं ये लिखूंगा, फिर बॉडी में यूं लिखूंगा, फिर ये वाला बॉडी पैराग्राफ 2 ऐसा होगा, पर पेंसिल से एक तरफ एक वो बना ले एक मैप के मेरा आंसर इस तरह चलेगा. और 4 मार्क क्वेश्चन के लिए भी वो प्लान कर ले कि इसमें ये मांग रहा है, ये नहीं मांग रहा है, तो आई शुड प्रोड्यूस दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. तो पहले एक आध मिनट 2 मिनट वो प्रिपरेशन के लिए ले, फिर उसके बाद वो प्रेजेंट करे अपने आंसर को. तो 18 मिनट्स फॉर 10 मार्क क्वेश्चन एंड 7 मिनट्स फॉर 4 मार्क क्वेश्चन, टोटल 25 मिनट्स होते हैं. 25 मिनट्स में आपको एक 14 मार्क क्वेश्चन कर लेना है. आपको जो टोटल पेपर है उसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5. क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा 8 मार्क्स का होता है. और आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, उनमें से क्वेश्चन नंबर 2 तो कंपलसरी है, और 3, 4, 5 जो है उनमें से 2 करने होते हैं कोई. तो ये जो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, ये सारे 14 मार्क्स के हैं. तो इनका पार्ट ए 18 मिनट्स में करना होता है, पार्ट बी 7 मिनट्स में. जब आप 3 क्वेश्चन करेंगे 14 मार्क्स, तो 25, 25, 25, 25, 75 मिनट्स. दिस मीन्स पहला क्वेश्चन जो होता है 8 मार्क्स का कंपलसरी, उसके लिए आपको टाइम मिलता है 15 मिनट्स, ठीक है. तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए. मेमोराइजेशन स्किल्स. अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी memorizing stuff. A lot of the students suffer in exams. उनका रिजल्ट ए स्टार आ सकता था, लेकिन वो ए हो गया. उनका रिजल्ट ए आ सकता था, लेकिन बी हो गया. उनका रिजल्ट बी आ सकता था, लेकिन सी हो गया. सी आ सकता था, डी हो गया. ठीक है, वाई? बिकॉज दे हेट टू मेमोराइज. आई एम सॉरी, लेकिन यू हैव टू मेमोराइज समथिंग, ठीक है. हर बंदे को दिन भर में याद रखनी होती हैं चीजें, ठीक है. इवन द प्राइम मिनिस्टर जब वो जाते हैं डाइस पे कौम से खिताब करने, तो उनके दिमाग में 8-10 चीजें होती हैं, ये बताना है, इस तरह बताना है, ये नहीं बताना है, ये बताना है. तो उनको जहन में होता है. आप नमाज के लिए भी खड़े होते हैं तो आपको सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा याद होती है ना. अत्तहियात जो पढ़ते हैं याद है ना. अगर आपको याद ही नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ो? So you have to memorize. There is no other way. You have to memorize accurate dates. You have to memorize accurate names. You have to accurate names of places. You have to memorize accurate references. References क्या होते हैं? या तो कुरानिक वर्स आपकी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए, या कोई हदीस आपकी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए, या सेइंग ऑफ अ कंपेनियन, सहाबी का कॉल. ये तीनों चीजें एक्यूरेट लिखनी होती, ये सब मेमोराइज होगा. इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नेम्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैसे हुए,
इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ पर्सन्स हु वर इन्वॉल्व्ड, इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस, ठीक है, इसी बेसिस पे अच्छे मार्क्स आते हैं। ए स्टार की क्वालिटी होती है, ए स्टार रिजल्ट की, कि उसमें मेमोराइज किया हुआ होता है। ठीक है, आप यू कैन नॉट जस्ट राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग और आप सोचें कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम के एक्यूरेट चलता है आंसर। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मार्किंग स्कीम। हैंड राइटिंग स्किल्स, कई स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग बहुत ही खराब होती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकता है। यू कैन सफर बिकॉज ऑफ अबिस्मल हैंड राइटिंग। यू हैव टाइम, ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10, उसमें आपके पास टाइम ये भी होता है, एक साइड प्रोजेक्ट होता है अपनी राइटिंग को सही करने का। ठीक है, यू हैव टू यूज आइदर जेल पेन, you are supposed to use black pointer और अ डार्क ब्लू पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि आंसर्स स्कैन होते हैं, अगर हल्के कलर के पेन से लिखेंगे वो स्कैन सही नहीं होगा, यू विल सफर। ठीक है, तो डार्क ब्लू पॉइंटर या ब्लू जेल पेन, डार्क ब्लू या फिर डार्क ब्लैक। ठीक है, अच्छा, आपको वाइटो और ये जो करेक्शन फ्लूइड ये अलाउ नहीं है सीआई में, स्ट्रिक्टली मना है। आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि ये करेक्शन फ्लूइड, वाइटो वगैरह ये यूज ना करें। अगर कोई वर्ड गलत हो गया है फिर उस पर बस सिर्फ एक डैश लगाएं, आगे लिखना शुरू कर दें, नो वरीज। ठीक है ना। एबिलिटी टू डेवलप लॉन्ग एंड डिटेल्ड रेस्पॉन्सेज, ये स्टूडेंट्स में लैक करती है। ठीक है, एबिलिटी टू डेवलप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन मैं पहले बात कर चुका हूँ। एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द आंसर इनटू स्मॉलर पैराग्राफ्स, ये एक बड़ी स्किल है। और ये स्किल ऐसी है कि आप एग्जामिनर को सोच के लिख रहे हो, उसको समझ आ भी रहा है या नहीं। आपने अचानक से लिखना शुरू कर दिया फिर, तो फिर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट इनटू द केव ऑफ हिरा, ही वाज देयर। अब एग्जामिनर ये सोच सकता है व्हाई डिड ही गो टू द केव, व्हाई, और वहां उन पे वही आई। तो मतलब केव में जाना जरूरी होता है क्या? केव क्या है, केव की इंपॉर्टेंस क्या है? तो यू हैव टू मेक श्योर हर चीज आप एग्जामिनर के सोचें, उसके माइंड में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, यहाँ कंफ्यूजन होगी। थिंक ऑफ इट एज समबडी हु नोज नथिंग अबाउट इस्लाम। ठीक है, अगर आप उसको समझा रहे हैं तो फिर वो कितने कंफ्यूजन आ रहे होंगे उसके माइंड में। व्हेन एग्जामिनर चेक्स योर आंसर, ही लीव्स क्वेश्चन मार्क्स कि यहाँ क्लैरिटी नहीं है, यहाँ क्लैरिटी नहीं है, यहाँ क्लैरिटी नहीं है। बच्चा अपनी धुन में लिख रहा है, सिर्फ वो अपना सोच के लिख रहा है कि मुझे लिखना है। वो ये नहीं सोच रहा है कि जिसके लिए लिख रहा है उसको समझ आ भी रहा है या नहीं। समटाइम्स a student writes an application for 1 day leave, और वो इतनी लंबी उसमें कहानी लिख देता है, बिल्कुल आखिरी लाइन में होता है तो सर एक दिन की लीव चाहिए। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट फॉर अ पर्पस, यू राइट while कीपिंग इन माइंड द मार्किंग स्कीम, यू राइट while कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर। अगर आप एग्जामिनर के लिए लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे, क्योंकि एग्जामिनर को समझ आ भी रहा है या नहीं। बहुत कंफ्यूजन छोड़ते हैं बच्चे। ठीक है, आई एक्सप्लेन समथिंग टू यू ओवर हियर। एग्जामिनर के पास चार किस्म के पेन हो सकते हैं। एक ग्रीन पेन, अगर वो ग्रीन पेन से आपके कुछ लाइंस को अंडरलाइन करता है, या आपके लाइंस के साइड पे ऐसे वर्टिकल लाइन खींचता है, ये 7 8 10 लाइंस, अगर वो ग्रीन पेन से उनको अंडरलाइन या साइड पे पैरेलल जो है वो वर्टिकल लाइन बनाता है, ग्रीन पेन का मतलब है हाईली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एज पर द मार्किंग स्कीम। अगर रेड पेन से ऐसा करता है मतलब हाईली इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एज पर द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम कुछ और मांग रही थी, इसने बिल्कुल ही उलट लिखा है। ठीक है, अच्छा, अगर वो येलो पेन से वो आपकी कुछ लाइंस को अंडरलाइन करता है या साइड पे वर्टिकल एक लाइन बनाता है, आपकी 7 8 लाइनों के साइड पे ना एक लंबी सी लाइन खींच देता है वर्टिकल, ऐसे सीधी लाइन खींच देता है, इसका मतलब ये है कि येलो पेन का मतलब ये है कि वो यहाँ कंफ्यूज हुआ है, आपने एग्जामिनर को कंफ्यूज किया है, क्योंकि आप जो लिख रहे थे उसमें आपने क्लैरिटी दी नहीं है, उसमें कंफ्यूजन छोड़ी है। थोड़ा और तरीके से लिखते, जरा एग्जाम्पल के साथ लिखते तो पता चलता कि आपको समझ में आया भी है या नहीं। तो यू हैव लेफ्ट द एग्जामिनर इन कंफ्यूजन, इज नॉट श्योर वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और नॉट। समझ ही नहीं आया उसको, तो वो येलो पेन यूज कर देगा। अगर उसने ब्लू पेन यूज कर दिया, ब्लू पेन से ऐसे लंबी लाइन खींच दी आपकी 7 8 10 लाइनों के साइड पे, या कुछ लाइनों को अंडरलाइन कर दिया ब्लू पेन से, इसका मतलब ये है कि आपने जनरल बातें लिखी हैं।
ऐसी बातें जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 10-20% थी, लेकिन वो जनरल बातें हैं, तो जो कहीं किसी भी क्वेश्चन में फिट कर दो, जैसे फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल जिहाद की बात हो रही है, तो आपने लिख दिया वो, और फिर जिहाद में नमाज भी होती है, और फिर मैं नमाज के बारे में बताऊं कि नमाज के बारे में ये हदीस है, और नमाज जो है ना वो पढ़ने से ये सुकून मिलता है, नमाज की सोसाइटी का ये इंपॉर्टेंस है, और नमाज का ये फायदा होता है सोसाइटी को, और पर्सनल बंदे को ये फायदा होता है। टॉपिक जिहाद का था, आपने सारा उसको नमाज पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये कहीं और चली गई बात, ये इसको आप रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल कमेंट्स जैसे कुछ बच्चे ये लिख देते हैं कि yes, Allah is very good, and Allah is very merciful, and everyone should be good to each other, and we should be happy, and we should take care of each other. Islam is like a great celebration, and we should take care of everyone, and we should never leave anyone in confusion and in a sadness. तो ये तो जिहाद में नहीं फिट होती हैं बातें सारी, ये तो नमाज में नहीं फिट होती हैं सारी बातें, हज में तो नहीं फिट होती हैं बातें, ये तौहीद में तो नहीं फिट होती हैं बातें, बैटल ऑफ बदर में तो नहीं फिट होती हैं बातें। ये जनरल कमेंट्स हैं। तो ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू पेन्स यूज करता है एग्जामिनर। ये एक बात आपकी काम आएगी आगे चल के। यू हैव टू मेक श्योर एग्जामिनर के लिए लिखें, उसको समझ में आ रहा है या नहीं, बड़े सोच के लिखें। ठीक है, कोहिजन, आपकी बातों को आपस में जुड़ना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग शुड हैव अ रेलेवेंस। ठीक है, डू नॉट लेट द confusion in the mind of examiner. Your two sentences were talking about something, and next two sentences are talking about something entirely different. So what is the connection between all these four sentences? You have left the examiner in confusion. फिर उसके बाद आपने दो सेंटेंसेस और लिखे, वो किसी और ही चीज के बारे में। तो what, where is the connection between all these 6 sentences? You have left the examiner in confusion. ठीक है, तो you have to make sure कि आपके आंसर में एक बैलेंस हो, बातें एक दूसरे से जुड़े, और एक सीक्वेंस में कि ये हुआ तो आगे समझ सकते हैं भी ये हुआ, फिर उसके उसका असर ये होगा, यूं होना शुरू हो गया। तो ये you have to make sure your answer should have clarity, cohesion and coherence, ability to add references in your response. A lot of students suffer and they do not get good marks because they either develop a reference by themselves, कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं, बोलते हैं ये रेफरेंस है, हालांकि वो ना कुरान की बात होती है, ना हदीस होती है, ना किसी सहाबी का कॉल होता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डेवलप एक्यूरेट रेफरेंसेस, एक्यूरेट कुरानिक वर्स लिखें अपने आंसर के बीच में, क्योंकि विदाउट रेफरेंसेस योर आंसर इज आइदर लेवल 2, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, विदाउट रेफरेंसेस, आई एम सॉरी बट यू नीड टू मेमोराइज द रेफरेंसेस। रेफरेंस क्या होते हैं? आई हैड टोल्ड यू बिफोर, या तो कुरानिक वर्स होगी, आप कुछ लिख रहे हैं तो व्हाई शुड आई ट्रस्ट योर इन्फॉर्मेशन? से मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये देखें कुरानिक वर्स कह रही है, एक्यूरेट कुरानिक वर्स है, अरे हाँ यार कुरान ये कह रहा था इसका मतलब तुम्हारी बात सही है। सर मैं थोड़ी कह रहा हूँ हदीस कह रही है, देखें एक्यूरेट वर्ड्स हैं हदीस के, सही बुखारी में से ली मैंने। अच्छा, इसका मतलब यार ये तो बात तुम्हारी सही है बिल्कुल। अच्छा सर मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन तो किसी सहाबी ने दी थी, हजरत अली ने ये फरमाया था, या हजरत उस्मान ने ये फरमाया था, हजरत अबू बकर उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये फरमाया था। अच्छा, तो ये एक्यूरेट वर्ड्स हैं, बुक में भी हैं, ये एक्यूरेट वैसे ही है, इसका मतलब आप जो लिख रहे हो वो सर्टिफाई करते हुए चल रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन, तो मतलब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, आपकी बात है सही है। ठीक है, समराइजेशन स्किल्स, स्टूडेंट्स सफर क्योंकि वो जो है एक बात को 2.5 पेज पे लिख ही नहीं पाते, वो कभी 4.5-5 पेजेस तक चले जाते हैं, वो 18 मिनट के बजाय 36 मिनट हो जाते हैं, 40 मिनट हो जाते हैं एक आंसर बनाते हुए। तो दिस इज एन आर्ट टू डेवलप योर आंसर। कभी आपको किसी बात को सिर्फ 6 लाइनों में समझाना होता है, कभी उसी बात को आपको 100 लाइनों में समझाना होता है। ठीक है, थिंक ऑफ एन थिंक ऑफ अ मैच, you saw a match between Pakistan and India, maybe, if for example. So, if I ask you, write a detailed account of this match, तो आपने 4 पेजेस पे लिख दिया, 8 साइड्स, ये हुआ, फिर ओवर की इस बॉल पे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो बैटिंग पे आए, उन्होंने 2 छक्के मारे, ये हुआ। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूँ यही मैच को 6 लाइनों में समझा दो, तो आप कह सकते हैं इट वॉज एन इलेक्ट्रीफाइंग मैच। India tried to do well, especially, their batsmen. This and this batsman tried to snatch away the match from Pakistan. But because of the excellent batting by Pakistani batters, the openers, Pakistan clinched, the victory from the hands of India. So you have to know how to summarize the information.
ठीक है, ये स्किल्स आपसे रिक्वायर्ड है, और बहुत सी स्किल्स हैं। एज द course will progress, I'll keep on explaining those to you. Books to be used, names are mentioned. I cannot explain to you these to you. These two are good. You should start from over here. These two are goods in a way. Hamad ibn Nishad, book one, book two. Because ये जैसे स्टूडेंट को जहन में रखते हुए बनाई गई हैं बुक्स, ये सिखाती हैं स्टूडेंट को, देखो अगर आंसर ये लिखना है ना टॉपिक, देखो ये ऐसे शुरू होगा, ये इंट्रो समझ में आ रहा है, अच्छा ये बॉडी, देखो बॉडी समझ में आ रही है, तुम्हें रेफरेंस चाहिए, ये लो रेफरेंस। अच्छा रेफरेंस भी हाईलाइटेड होते हैं, कभी ऑरेंज कलर में, कभी ग्रीन कलर में, कभी पिंक कलर में, तो कभी लाइट ब्लू कलर में, तो आपको फॉरन हिंट देती है, देखो रेफरेंस ये, देखो रेफरेंस ये वाला डालो। अच्छा रेफरेंस वन लाइनर भी हो सकता है, थ्री लाइनर भी हो सकता है, टू लाइनर भी हो सकता है, सेवन लाइनर भी हो सकता है। ये आपको हर किस्म का रेफरेंस देती है आपकी सहूलत के हिसाब से। दीज बुक्स आर वेरी गुड, comprehensive in information। इन बुक्स के साथ यू कैन अटैच निगत बाजवा, सम इंफॉर्मेशन कैन बी gathered from over here। या फिर साकिब मोहम्मद, ये जो बुक है साकिब मोहम्मद एंड हबीबुर रहमान। नॉर्मली ग्रेड 9 में तो ये दो बुक्स ही यूज होती हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ यू कैन कनेक्ट अदर बुक्स एज वेल। फखर नूर मोहम्मद इज अ वेरी बेसिक बुक। Nevertheless, it's like a storybook. It helps the students in developing the answer, but I would rather go for the above four. ठीक है, अच्छी books है। Now, let us move towards the weightage. Weightage and why does it matter? आपको बताया था कि जो AO1 होता है, स्टैंडर्ड AO1, पूरे सिलेबस में आपको दो स्टैंडर्ड्स पर जज किया जाएगा। ठीक है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 AO1 एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 AO2। ठीक है, पूरा इस्लाम है तो इसी की बेसिस पे। AO1, AO1 मीन्स नॉलेज, यानी 10 मार्क क्वेश्चन। AO2 मीन्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी नॉलेज के क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंडिंग AO2 को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी कंफ्यूज ना हो जाए, व्हेन आई मूव टुवर्ड्स द टॉपिक आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। लेकिन जस्ट रिमेंबर कि वेटेज मैंने आपको बताया था, AO1 का वेटेज पूरे पेपर में आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, पेपर वन पेपर टू में 50-50 मिला के 100 मार्क्स, उसमें जो है 68% वेटेज AO1 यानी नॉलेज का है, और 32% वेटेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पार्ट बी क्वेश्चंस का। Now, let us see what is weightage and why does it matter. In the context of Islamic 2058, weightage refers to the relative importance or value assigned to different parts of the syllabus or exam papers. When calculating a student's overall grade, here's how it works. ठीक है, Islamic 2058 स्ट्रक्चर आपको पता है, पेपर वन में क्या चैप्टर्स आते हैं, पेपर टू में क्या चैप्टर्स आते हैं। Now, each paper is weighted equally unless otherwise updated by Cambridge. Normally दोनों पेपर्स का वेटेज 50-50 होता है। ठीक है, now as you can see over here, the impact of the weightage. Let's say a student scores 70% in paper वन, यानी 35 मार्क्स लेता है इन पेपर वन, 50 का 70%, 35, और फिर 50 जो है यानी 25 मार्क्स पेपर टू में लेता है, 50% मार्क्स आउट ऑफ 50, 25 मार्क्स लेता है। द ओवरऑल वेटेज विल बी 70 को 0.5 से इंटू करें एंड 50 को 0.5 से इंटू करें, तो 60% वेटेज बन रहा है। ठीक है, तो फाइनल ग्रेड विल बी 60%। ठीक है, नाउ